the second video of relations and functions. Today we will solve the exercise based on the previous video which I taught you, that what is a relation, how it is said to be symmetric, transitive, reflexive, symmetric and transitive, or equivalence relation. Let's talk about the first question. Let's talk about the first question, first part. R is a relation which is between x and y such that 3x minus y is equal to 0, and it is told that the relation is set between a to a, set a which is from 1 to 14. So first let's find out the values of the relation, the domain pair which satisfy the relation. Let's talk here. Can I say 3x is equal to y? तो चेक करो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो y जो है वो 3 आएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है. फिर x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो y जो है 3 2 ज़ा 6 आएगा. सिमिलरली x की वैल्यू 3 पुट करूंगी तो 3 3 ज़ा 9, y विल बी 9, एंड x की वैल्यू 4 पुट करूंगी so 4 3 ज़ा 12. If I try and put the value of x as 5 children, so 5 3s are 15, right? So you know that 15 is not here, okay? वो set के अंदर है ही नहीं, तो हम ये नहीं ले सकते. तो I am hoping that you will be able to form a relationship when the values are defined. So this is a relation. Now check. You have to check for reflexive. मैंने आपको definition क्या लिखवाई थी reflexive की? First part. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है a कॉमा a बिलोंग्स टू r. तो चेक करो क्या 1 कॉमा 1 r में बिलोंग करता है? नहीं करता. सो देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव. राइट चिल्ड्रन. सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं. सिमेट्रिक की डेफिनेशन मैंने क्या, दिस इज फॉर रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या लिखवाया था? फॉर सिमेट्रिक, लेट मी एक्सप्लेन. a कॉमा b अगर r को बिलोंग करता है इम्प्लाइज b कॉमा a भी बिलोंग करना चाहिए r को. लेट्स वेरीफाई दिस कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं. 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r, इट इज वेरी क्लियरली गिवन, बट can you see 3 comma 1 belonging to r? No, it does not belong to r, therefore not symmetric. Let's talk about the third part, transitive. Again transitive की definition मैंने आपको क्या लिखवाई थी? a comma b belongs to r and b comma c also belongs to r. Then we have to check that ac भी क्या r को belong करता है या नहीं. चेक करिए. 1 comma 3 belongs to r children and 3 comma 9 belongs to r. But can you see 1 comma 9 belonging to r in the relation? No, 1 comma 9 does not belong to r, therefore not transitive. I hope I am clear with what we are going to do. So for the specific sets, जब a specific define होता है तो आपको relation भी specific find करना होगा. और अगर general होगा, I will tell you how to do the question where r is defined in a general way. All right. I am not going to rub the entire portion. I will just rub the part of it. Okay. जो चीज़ हर उसमें लगनी है मैं उसको fixed रख रही हूँ. तो आपको हर जगह सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव का मतलब पता होना चाहिए. सो आई एम कीपिंग इट सेम. लेट मी रब दिस पार्ट आल्सो. सो दिस इज फर्स्ट. सो दिस विल बी फिक्स्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. ओके. So I'm not going to write it again and again. Let's do the first question second. Okay, let me use a different color for that. First question, second part. Again, r is a relation in natural numbers, okay, such that it says r is, so let's talk about relation which is in natural numbers where x is less than 4. So natural number x less than 4 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 1, 2 and 3 हो सकती है. These are the natural numbers, right children? I hope you remember natural numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so less than 4 बोला है तो x की वैल्यू अगर 1 है
तो y कितना होगा 6, x की वैल्यू 2 है तो y कितना होगा 2 + 5 दैट इज 7 एंड x की वैल्यू 3 है तो y कितना होगा 8, राइट चिल्ड्रन? दिस इज हाउ यू विल फॉर्म अ रिलेशन। नाउ लेट्स चेक कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है, वो तो दिख ही रहा है। चेक करो 1, 1 should belong to R which is not belonging, right? So hence it is not reflexive. So बहुत clear लिख दोगे, right? Similarly सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था, क्या डेफिनेशन थी? सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि अगर a, b r को बिलोंग करता है तो b a b r को बिलोंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कैसे लिखोगे, यहाँ पे तो क्लियर है। लेट मी टेक द कलर। 1, 1 does not belong to R, so not reflexive. Similarly, इधर कैसे एग्जाम्पल दोगे? 1, 6 belongs to R, so implies 6, 1 भी R को belong करना चाहिए था, जो कि नहीं है, so not symmetric. Similarly, transitive, how will you check whether it is transitive or not? Transitive के लिए ए बी एंड बी सी, सो इसमें तो कोई पेयर ही नहीं है जो ट्रांजिटिव जज करता हो, राइट? सो ऑब्वियसली ए बी एंड बी सी should belong to R, so there is no such property as transitive, right children? So it is neither reflexive nor symmetric nor transitive, right children? So let's move ahead. For the third question, again third question क्या कहता है? R is a relation where y is divisible by x. So y is divisible by x, तो ये तो बहुत ही, और रिलेशन 1 to 6 में डिफाइन है। तो चलिए पहले 1 का देखते हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, राइट? y is divisible by x. Okay, let's talk about other one. 2 के साथ कॉम्बिनेशंस लेते हैं। 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा बेटा, 2 के साथ 6 आएगा, दैट्स इट। 2 के साथ और कोई नंबर नहीं है। नाउ लेट्स टेक फॉर 3, 3 के साथ 3, 3 के साथ 6, दैट्स इट। 4 लेते हैं, 4 के साथ 4, और तो आएगा ही नहीं कोई। आगे 5 के साथ 5 एंड 5 एंड ऑब्वियसली 6 के साथ 6। सो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। वो तो क्लियर दिख ही रहा है। चेक करिए, आपको सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स यस। आप कैसे लिखोगे? सिंस 1 1 2 2 dot 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 till 6 6 belong to R, therefore reflexive. Okay, now let's move ahead for symmetric. कि symmetric है कि नहीं। symmetric के लिए again properties check करो। अगर 1 2 belong to R है, जो कि हमें दिख रहा है, तो implies 2 1 भी R को belong करना चाहिए, तो वो तो नहीं है, right? So not symmetric, right? So let's talk about transitive children. Transitive में क्या होता है? चेक करिए। 1 4 अगर मैं 1 4 बिलोंग टू R करूं एंड 4 के साथ और क्या है? 4 4 बिलोंग्स टू R, तो चेक करिए क्या 1 4 बिलोंग करता है R को? यस इट इज। सो देयरफॉर ट्रांजिटिव। So I hope I am clear.
So it is reflexive and transitive, but it is not symmetric. All right, children. So this is how you will prove the third part. Let's talk about the next one. All right. Let's talk about the fourth one. Fourth one says that R is a relation between x, y such that x minus y is an integer. So, is an integer. So can I say x minus y belong to z बोल रहा है वो integer is denoted by capital Z in sets. So let's prove कि वो reflexive होगा कि नहीं. Check करते हैं. a minus a क्या आएगा अगर मुझे reflexive के लिए चाहिए. a minus a is 0. Is 0 integer, children? Yes, 0 belongs to z. आपको पता है. So therefore it is reflexive. राइट आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए. a माइनस बी इंटीजर है. सपोज करो मैं a माइनस बी को कुछ ले लेती हूँ. सपोज लेट मी टेक इट एज p वेयर p बिलोंग्स टू z. ओके सो व्हाट विल बी. कैन आई से b माइनस a विल बी माइनस p. नाउ टेल मी इज माइनस p इंटीजर. यस माइनस p इज ऑल्सो इंटीजर. सो अगर a कॉमा बी आर को बिलोंग करेगा तो बी ए बी आर को बिलोंग कर रहा है. राइट चिल्ड्रन. उसने बोला है x और y x माइनस वाई इंटीजर है तो मैंने क्या किया ए बी अगर r को बिलोंग कर रहा है इट एम्प्लाइज a माइनस बी इज अ इंटीजर. तो मैंने कोई भी जनरल तो मैंने आपको बताया था ना कि जनरल का प्रूफ जनरल ही देना पड़ेगा. तो a माइनस बी इक्वल्स टू कोई इंटीजर ले लिया p वेर p इज बिलोंगिंग टू z. So b minus a b minus p आएगा. So can I say this implies b minus a also belongs to R? Hence it is symmetric. Now let's talk about this children. Transitive है कि नहीं. अगर a minus b एक इंटीजर है जिसको मैंने ऊपर p लिया है और b minus c भी एक इंटीजर है. सपोज मैं इसे q ले लेती हूँ where p and q belongs to z. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल आई गेट एज a माइनस सी. तो इन दोनों को ऐड कर दे बेटा तभी मेरे पास a माइनस सी आएगा. a माइनस बी प्लस b माइनस सी. चेक करो ये कट गया और यहाँ पे p प्लस q आ गया. सो मेरे पास क्या आया a माइनस सी इज इक्वल टू p प्लस q. अब p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है तो आपको पता है सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो अ इंटीजर. सो कैन आई से as we know that p plus q also belongs to z implies a comma c also belongs to r. Hence it is transitive in nature. So that means fourth जो relation है वो reflexive भी है symmetric भी है और transitive भी है. Can I also say क्योंकि ये तीनों है so it is also a equivalence relationship, right? आपने यही definition पढ़ी थी equivalence की. A relation which is reflexive, symmetric and transitive is also known as equivalence. So I hope proof of general clear हो गया होगा, right? अच्छा बहुत बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं कि कैसे मैम आपको कैसे पता चला कि a माइनस सी आएगा. चेक करो अगर मुझे ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो मुझे a c भी r को बिलोंग करना है. तो अगर यहाँ a और c डाल दूँ x की जगह a और y की जगह c डाल दूँ तो मेरे पास क्या आएगा a माइनस सी आएगा ना. इज अ इंटीजर. इसीलिए मुझे पता चला a माइनस सी के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी वो b b कैंसिल आउट हो जाएगा. राइट दैट लॉजिक यू हैव टू यूज. ऑल राइट चिल्ड्रन लेट्स मूव अहेड. अगेन अगला पार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट अगेन चेक करिए. फिफ्थ पार्ट के बहुत सारे पार्ट है. एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस. तो ऑब्वियसली चलो करके देखते हैं. ये तो बहुत जनरल है. क्या x कॉमा x
बिलोंग करेगा ए को, हाँ। अगर x एक बंदा है जो एक वर्क प्लेस पे काम करता है तो x अपने साथ तो सेम वर्क प्लेस पे ही जाएगा ना, तो yes it is reflexive in nature, right? Let's talk about, okay, let me use a different color different कर दिया मैंने, so it is reflexive in nature. अब ट्रांजिटिव करते हैं। अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो अंडरस्टूड है y एंड x भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो इन नेचर। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। अगर ए बी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं और बी सी भी सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो अंडरस्टूड है कि ए सी भी सेम प्लेस पे वर्क करेगा, so yes it is transitive also in nature. Similarly x and y live in the same locality, x के साथ, x अपने साथ, x, x belongs to r रहेगा क्योंकि x अपने साथ तो सेम लोकेलिटी में ही रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर x y के साथ सेम लोकेलिटी में रह रहा है तो y x के साथ भी सेम लोकेलिटी में रहेगा, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव देखते हैं, x y के साथ सेम लोकेलिटी, y z के साथ सेम लोकेलिटी, x z के साथ सेम लोकेलिटी, तो ट्रांजिटिव भी है। लेट्स चेक दिस। x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो चेक करो क्या x से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो सकता है? नहीं, एक बंदा अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, तो x, x डज नॉट बिलोंग टू r, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर x y से बड़ा है तो क्या y x से बड़ा होगा? नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर बड़ी है और y की हाइट नेक्स्ट y z, राइट, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? चेक कर लीजिए क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, x और y का रिलेशन चेक करो। x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू z प्लस 7, तो x जो है वो z से 14 सेंटीमीटर बड़ा आएगा, तो दैट मीन्स दिस इज नाइदर ट्रांजिटिव, राइट चिल्ड्रन। सिमिलरली x इज वाइफ ऑफ y, क्या x की वाइफ हो सकती है? ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक बंदा खुद की वाइफ थोड़ी हो सकता है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक। अगर x y की वाइफ है तो क्या y x की वाइफ हो सकता है? नो, सी वी आर नॉट टेकिंग सेपरेट जेंडर हियर, हम एक नॉर्मल मैन एंड वुमेन की बात कर रहे हैं, ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। सिमिलरली ट्रांजिटिव, अगर x y की वाइफ है और y z की वाइफ है तो x z आपस में वाइफ होंगे? नो, इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, राइट चिल्ड्रन, सो इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। सिमिलरली x इज फादर ऑफ y, क्या x अपना ही फादर हो सकता है? नो, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर x y का फादर है तो क्या y x का फादर होगा? नो, not symmetric. Let's talk about transitive. अगर x y का फादर है और y z का फादर है तो x और z x क्या फादर होगा z का? नो, वो ग्रैंड फादर हो जाएगा, so this is also not transitive. So I hope the relations are clear. Okay. Similarly आगे भी सेम लॉजिक ही यूज करना है पूरी एक्सरसाइज के लिए, तो कोई दिस इज नथिंग not something which is not very great, same चीज़ें repeat हो रही जा रही है। Show that in a relation R is set of real numbers, is neither reflexive, not symmetric, not transitive. अगर आपको कभी भी ऐसा शो करना है जो कि सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव ना हो, तो आप उसे एग्जाम्पल से बहुत आराम से शो कर सकते हो, राइट चिल्ड्रन। सो हाउ विल बी शो कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है? अगर मैं चेक करिए, अगर मैं कोई नेगेटिव नंबर लूँ, अगर मैं कोई पॉजिटिव नंबर लूँगी 2 तो चेक करिए 2 इज लेस दैन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये आएगा, लेकिन क्योंकि वो रियल नंबर है तो मतलब नेगेटिव भी सेटिस्फाई, -1 -1,
इज -1 लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर? यस, राइट, ये भी आ रहा है। लेकिन क्या क्या ये फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए होंगे? लेट्स चेक अबाउट फॉर 1/2। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, राइट? सो ये क्या आ गया मेरे पास? 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। सो क्या 1/2 लेस है 1/4 से? नो, राइट चिल्ड्रन? सो दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट चिल्ड्रन? सो आप इसे एग्जाम्पल दे के समझाओगे कि क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर नहीं है, सो यू विल गिव एन एग्जाम्पल एंड शो दैट दे आर नॉट। Okay, similarly you will show it for symmetric also and transitive also. Find 2 examples. All right children? Okay, let's move ahead. Question number 3, same way में आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। All right, let's check this. रिलेशन जो है वो इन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो क्योंकि इन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया है तो आपको प्रॉपर रिलेशन बनाना भी पड़ेगा। सो थर्ड में आपको प्रॉपर जनरल नहीं, प्रॉपर रिलेशन बनाना पड़ेगा। सो आर इज अ रिलेशन। अगर A1 है तो B2 आएगा, A2 है B3 आएगा, A3 है B4 आएगा, और ये 4 है तो ये 5 आएगा, और ये 5 है तो ये 6 आएगा। तो चेक करते हैं, इज इट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 बिलोंग टू आर होना चाहिए। नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये तो क्लियर हो ही गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर 1 2 बिलोंग टू आर है, 1 2 बिलोंग टू आर है, तो क्या 2 1 भी यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक ऑल्सो। सिमिलरली ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए अगेन क्या देखना पड़ेगा? अगर 1 2 बिलोंग करता है आर को एंड 2 3 भी बिलोंग करता है आर को, तो क्या 1 3 आर को बिलोंग करता है? नहीं, 1 3 भी आर को बिलोंग नहीं करता। सो इट इज नाइदर it is not neither reflexive, it is neither symmetric nor transitive in nature. This is how you will prove. Again children, question number 4 and question number 5 में again आप एग्जाम्पल दे के ही समझाओगे कि वो है या नहीं। चेक करिए, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये तो क्लियर है ही कि क्यों कैसे आप एग्जाम्पल देंगे। इज डिफाइंड इन रिलेशन आर। लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि जनरल है तो हमें जनरली समझाना पड़ेगा। नॉट का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपको, उसमें रिलेशन है ए इज लेस दैन बी, लेस दैन इक्वल टू। तो ए कॉमा ए अगर हम लेंगे तो ए इज लेस दैन इक्वल टू ए, तो ये तो ट्रू है, राइट? और होता है ना, लेस दैन इक्वल टू मतलब या तो लेस या इक्वल, राइट? सो येस, इट इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिमेट्रिक सिमेट्रिक को समझाने के लिए चेक कर लीजिए, अगर ए कॉमा बी, ए इज लेस दैन बी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी रियल नंबर 1 2, सो 1 इज लेस दैन इक्वल टू 2 है, राइट? सो क्या 2,1 बिलोंग करेगा आर को? नहीं करेगा। वाई? बिकॉज 2 इज नॉट लेस दैन इक्वल टू 1। दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो जहाँ पे भी नॉट समझाना है, नॉट आप हमेशा एग्जाम्पल से समझाओगे। एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो वो तो क्लियर है। ए अगर लेस दैन बी है और बी अगर लेस दैन सी है, डोंट यू थिंक ए जो है वो ऑटोमेटिकली सी से लेस होगा? सो दिस इज हाउ जनरली यू विल राइट डाउन, राइट? सो yes, it is transitive in nature, right?
Similarly, for question number 5 also you will take an example and explain कि वो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव. A is less than equal to B cube. So obviously रियल नंबर्स है, पॉजिटिव लोगे तो आएगा ही आएगा, राइट. लेकिन अगर हम नेगेटिव -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 का होल क्यूब. सो -1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का सॉरी -1. 2 लेके देखते हैं. -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब. सो -2 इज लेस देन इक्वल टू -2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. सो इज इट ट्रू? नो, इट इज़ नॉट ट्रू, राइट. सो ऐसे हमें एग्जाम्पल देने हैं रिफ्लेक्सिव के, सिमेट्रिक के और ट्रांजिटिव के कि वो नहीं है, क्योंकि दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक. सो प्लीज थिंक ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड जस्ट मेंशन. ओके, ऑलराइट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 अगेन दिख रहा है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, वो तो दिख ही रहा है. 1, 2 तो 2, 1 दिख रहा है तो येस इट इज सिमेट्रिक. 1, 1 नहीं दिख रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं है. 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए था, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 6. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, x and y have the same number of pages. तो obviously x और x के same number of pages होंगे, yes होंगे. अगर x तो इसका मतलब it is a रिफ्लेक्सिव रिलेशन. एक्स वाई के अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो क्या वाई एक्स के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे? यस होंगे. सो इट इज सिमेट्रिक इन नेचर. एक्स वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एंड वाई जेड के सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो अंडरस्टूड है ना. एक्स जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर. सो इट इज इक्विवेलेंस. जो तीनों होता है वो इक्विवेलेंट होता है. दैट इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 7. अगेन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रिलेशन जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने वैल्यू सेट कर दी है. तो क्वेश्चन नंबर 8 का चेक करो, रिलेशन क्या आएगा. 1 के साथ 3 इवन नंबर है, मॉड, राइट. फिर 1 के साथ 5 भी आएगा, फिर 3 के साथ 5 भी आएगा एंड 2 के साथ 4 भी आएगा. ऑलराइट, लेट्स चेक. क्या a, बिलोंग करता है? a minus a will give you 0. Is 0 a even number? Yes, it is. 0 is a even number, therefore it is reflexive. आपको पता है ना, for reflexive हमें क्या चेक करना है? a belong to R. So yes, it is reflexive. So चेक करिए. अगर a minus b एक इवन नंबर है, मॉड ऑफ a माइनस बी इवन नंबर है, सपोज करो मैं 2x ले लेती हूँ, तो मॉड ऑफ b माइनस a क्या आएगा? वो भी तो यही आएगा, मॉड ऑफ -2x विच इज 2x, वेर 2x इज अ इवन नंबर. सो यस इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो. सिमेट्रिक की डेफिनेशन अगेन हमें पता है. a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b, a भी बिलोंग करना चाहिए r को. ट्रांजिटिव चेक करते हैं, थर्ड पार्ट. a माइनस बी इवन नंबर है जिसे मैं 2x ले रही हूँ. b माइनस सी भी इवन नंबर है जिसे हम 2y ले लेते हैं. अब हमें चेक क्या करना है? यहाँ गलती होती है. टू चेक मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन, है ना. ये चेक करना है ना. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. सी दिस इज़ वेयर पीपल डू मिस्टेक. वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मॉड को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं. चिल्ड्रन, दिस इज़ अ रॉन्ग वे. मॉडुलस कैन नॉट बी एडेड. आपको पता है आपको मॉड को सिंप्लीफाई करना है तो आपको मॉड रिमूव करना पड़ेगा. यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2y. अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए, ये और ये कट गया, तो a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन लेके अंदर क्या मैं 2x प्लस 2y लिख सकती हूँ. तो चेक करिए, कैन आई नाउ से दैट मॉड ऑफ a माइनस सी
इज इक्वल टू, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई which is a even number. So yes, it is transitive in nature. Am I clear? दिस इज हाउ, ये गलती भी, आई होप ये गलती आपने नोट कर ली है कि मॉड आपस में ऐड नहीं हो सकते, आपको मॉडुलस को पहले रिमूव करके फिर ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. दैट इज वाई दिस इज अ हॉट क्वेश्चन, इसमें यही गलती होती है. ओके, देर आर नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी सिंपल. आई थिंक वो थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट. और वो क्या है, चेक करो. सेकेंड पार्ट कहता है, मैं रिलेशन आपको दिखा देती हूँ ताकि आपका सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो जाए. सेकेंड पार्ट कहता है शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. चेक करो, जो हमने रिलेशन फाइंड किया था चिल्ड्रन, उसमें 1, 3, 5 की जो इमेज है वो 1, 3, 5 की वही प्री इमेज भी है, राइट. सो एज 1, 3, 5 हैज the image as 1, 3, 5 only. So yes, they are related. Similarly, check करो 2 और 4 जो है, 2 and 4 has image as 2 and 4 only. So ये आपस में रिलेटेड है. चेक करो, किसी भी 1, 3 और 5 की जो इमेज है वो 2 and 4 नहीं आ सकती है, राइट. सो दे आर नॉट, 1, 3, 5 is not related to 2 and 4, right. So this is the last part of the question. Since 1, 3, 5 has no image as 2 and 4, hence they are not related. That is how you will do. All right children. Similarly, 9th question कैसे करना है, अगेन एग्जाम्पल लेके, बहुत ही सिंपल. रिलेशन गिवन है तो आप रिलेशन ऑब्वियसली फाइंड कर ही लोगे. 0 से 12 तक वैल्यूज हो सकती हैं, और a माइनस बी का मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 4. यानी कि 4 के साथ क्या आएगा, 0 आएगा. ऑब्वियसली 0 के साथ 4 भी आएगा क्योंकि मॉड है. 5 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा. 2 के साथ चेक कर लेते हैं, 2 के साथ 6 आएगा, 6 के साथ 2 आएगा, एंड सो ऑन करके आप सारे निकाल लोगे, राइट. टिल कितना निकालना है, टिल 12, राइट. तो 12 के साथ क्या आएगा आपको पता ही है, 12 के साथ 9 आएगा. मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए ना, 12 में से 9 गया, राइट. 12 के साथ 9 थोड़ी आएगा, 12 के साथ, आई एम सॉरी, 8 आएगा, और 8 के साथ 12 आएगा, राइट. इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. सो 8 और 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट चिल्ड्रन. So this is how you will get. Now you can check whether it is reflexive, symmetric and transitive. वो तो clear है ही. चेक करिए कि क्या इसमें, ऑब्वियसली क्या इसमें सारे सेम एलिमेंट्स 1 के साथ 1 आएगा. यस, 1 माइनस 1 इज 0, राइट. 0 इज अ मल्टीपल, सो ऑब्वियसली 2 के साथ 2, सो ऑन टिल 12 के साथ 12 सारे आएंगे, राइट. सो इट इज रिफ्लेक्सिव इन नेचर. लेट्स टॉक अबाउट सिमेट्रिक. वो तो आपको दिख ही रहा है कि सिमेट्रिक तो है ही है क्योंकि मॉडुलस आ गया. और ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, 4 0 आ रहा है, 0 4 आ रहा है, तो 4 4 भी आ रहा है, राइट. इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो इन नेचर, राइट. सिमिलरली लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट भी सिंपल है. उसने क्या बोला है, आर इज अ रिलेशन ए, तो ऑब्वियसली ए इक्वल्स टू बी. तो मतलब क्या आएगा रिलेशन में, ऑब्वियसली 1 1, 1 equal to 1, 2 equal to 2 and so on till 12 equal to 12.
नाउ चेक करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है। सिमेट्रिक चेक कर लो, 1 1 1 है तो 1 1 है, तो यानी कि ये तो एक ऐसा रिलेशन हो गया जो कि सिमेट्रिक भी है। और क्या ये ट्रांजिटिव है, 1 1 है। हाउ विल यू से इट इज ट्रांजिटिव चिल्ड्रन? नाउ फॉर ट्रांजिटिव यू हैव टू चेक दैट अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो सी, वैसे तो ये कॉमन सेंस है, जनरल है, क्योंकि रिलेशन तो यही आएगा। ए अगर बी के इक्वल है, लेट मी चेक इन द जनरल फॉर्म, राइट। अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो क्या ए सी के इक्वल होगा? यस होगा। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, यानी कि सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी के इक्वल है, तो क्या बी ए के इक्वल होगा? हाँ होगा। सो दिस इज ऑल, रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, सिमेट्रिक ऑल्सो, ट्रांजिटिव ऑल्सो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब इसमें 1 से क्या रिलेटेड है, सेकेंड वाले में तो 1 से जो रिलेटेड एलिमेंट है वो 1 ही है। फर्स्ट वाले में 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या क्या आए हैं, 1 आया है, 5 आया है और 9 आएगा, राइट चिल्ड्रन? 9 भी तो आएगा ना, 1 9 8 मल्टीपल ऑफ 4, राइट, एंड 9 1, ऐसे करके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। So images of what will be how many elements are related, 1 5 9. So this is how you will write down, right? इसके बीच के elements जो थे, right? You have to write all right. Question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एग्जाम्पल दीजिए कुछ ऐसा जो कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये तो हम फर्स्ट वाला मतलब पीछे वाली स्लाइड में कर चुके हैं। 1 2 एंड 2 1, इट इज सिमेट्रिक इन नेचर बट इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, राइट। आगे चेक करते हैं, एक ऐसा कंडीशन जो कि ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो। सो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि कैन आई से ए इज ग्रेटर देन बी। चेक करो, ये ट्रांजिटिव हमेशा होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू साइन नहीं लगाया, राइट। अब एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव है, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव and symmetric. So A and B, can I say A is friend of A? Friend of B, sorry. So check करो, A का friend होगा ही, तो yes it is reflexive. A अगर B का friend है तो B A का friend होगा, yes it is symmetric. ट्रांजिटिव जरूरी नहीं है, अगर A B का फ्रेंड है और B का कोई और फ्रेंड है C, तो क्या A और C आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं? इट इज नॉट नेसेसरी, राइट चिल्ड्रन। So that this is a relation which is reflexive and symmetric but not transitive. आगे बताते हैं, एक ऐसा रिलेशन बताइए जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो वो सेम ही ले लेते हैं, R is a relation between AB such that A is less than equal to B. So less than equal to ले लिया, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है क्योंकि इक्वल टू साइन आ गया। ट्रांजिटिव भी होगा ही होगा क्योंकि A अगर लेस है B से और B लेस होगा C से, तो A और C, A विल ऑल्सो बी लेस दैन C, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। A अगर B से छोटा है तो B A से छोटा नहीं होगा, राइट। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो R इज अ रिलेशन बिटवीन A B, कैन आई से A is sister or maybe brother, whatever you want to write down, sister of B. चेक करो, A B की सिस्टर है तो B A की सिस्टर होगी, A B की सिस्टर है, B C की सिस्टर है, तो A और C आपस में सिस्टर्स होंगे। रिफ्लेक्सिव नहीं है, A का सिस्टर मतलब कोई अपना सिस्टर नहीं हो सकता, राइट। सो ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11. Show that R is a relation of point A where plane R is given by PQ. Distance of P from origin is same as the distance of Q from origin. Is a equivalence relation. ये तो clear है ही है.
P के साथ इक्वल डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम ओरिजिन, यस ट्रू। अगर P Q के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या Q P के साथ भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यस, तो इट इज सिमेट्रिक ऑल्सो। अगर P Q के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन एंड Q R के साथ इक्वल डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली P और R भी एक दूसरे के साथ इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे, राइट। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ऑब्वियसली क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है, डोंट यू थिंक that this will be the center, right? It will be O will be the center point. This show that further all the points, अगर हमें कोई फिगर बनाना है जिसमें O P Q और P R ये भी इक्वल है, राइट, और P R भी आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये पॉइंट्स O जो है वो सेंटर ही होगा, तभी जो P पॉइंट है show that the set of all points related to a point P not equal to 0 0 is a circle. Obviously P point can be anywhere on the circle, right, such that ये equal होंगे. So this can be P, this can be P, this can be P, this can be P, anything. So yes, it is true that since from the center radius is always equidistant, so it has to be radii, right children? All right, question number 12. Again a very simple question. अगर दो ट्राइंगल एक के सिमिलर है तो एक ट्राइंगल T1 के सिमिलर होगा, yes, so it is reflexive. अगर T1 T2 के सिमिलर है तो क्या T2 T1 के सिमिलर होगा, yes होगा, so it is symmetric. अगर T1 T2 के सिमिलर है एंड T2 T3 के सिमिलर है तो क्या T1 एंड T3 आपस में सिमिलर होंगे, yes होंगे, so it is transitive also and that therefore it is equivalence. Now consider the three right triangle as 3, 4, 5 and the other as 5, 12 and 13 and T3 as 6, 8 and 10. Which are the related one? Related मतलब अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अगर T1 T2 के सिमिलर है या T2 T3 के सिमिलर है या T1 T3 तीन ही केसेस हो सकते हैं, T3 के सिमिलर है, तो इनकी साइज रेशियो में होनी चाहिए. तो आप चेक करिए कि किसकी साइज रेशियो में है. 3/5 क्या इक्वल होता है 4/12 के, नहीं होता, यानी कि T1 और T2 तो सिमिलर नहीं है. 2 and 3 चेक करते हैं. 5/6 क्या इक्वल है 12/8 के, नहीं, सो 2 and 3 भी नहीं है. चेक करो 1 and 3 चेक करते हैं, क्या 3/6 इक्वल है 4/8 के, यस है. इक्वल है 5/10 के, है, सो यस T1 and T3 आर रिलेटेड टू ईच अदर. ऑलराइट चिल्ड्रन, सेम वे क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही करना है. P सेट ऑफ पॉलीगन्स है, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या P1 के साथ सेम साइड होंगी, यस होंगी, सो रिफ्लेक्सिव. अगर P1 की और P2 की सेम साइड्स हैं तो क्या P2 और P1 की भी सेम साइड्स होंगी, यस, ऑर्डर विल नॉट मैटर. अगर P1 P2 सेम है, सेम साइड्स का है और P2 P3 के साथ सेम साइड्स का है तो क्या P1 एंड P3 की साइड सेम होंगी, यस होंगी, सो यस इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, राइट. अब उसने आगे क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट क्या है कि कोई भी एक ट्राइंगल है, what is the set of elements A related to the right angle triangle with side. एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स दिया हुआ है इसने 3, 4 and 5. अब आपने क्या करना है, एक ऐसा पॉलीगन ऐसा रिलेट करना है, तो ऑब्वियसली उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द साइड. ये राइट एंगल ट्राइंगल है चिल्ड्रन, राइट एंगल ट्राइंगल. So since 3, 4 and 5 are the sides of a right angle triangle, therefore can I say the set of so set of A
is the set of right angle triangles. मतलब कोई भी right angle triangles जो है वो इसके साथ इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि दोनों का जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है. सो कोई भी राइट ट्राइंगल जो होगा, ऑब्वियसली राइट ट्राइंगल होगा तो ओबे तो करेगा ही रूल को, राइट. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो इट इज any set of right triangles which will have the relationship between these 3, 4 and 5 sides. Similarly 14 चेक कर लेते हैं. 14 में क्या बोला है? L1 is parallel to L2. क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नाउ पैरेलल के केस में क्या एक लाइन खुद के पैरेलल होती है? यस होती है. लेकिन अगर यही केस इन्होंने परपेंडिकुलर का पूछा होता, एक लाइन क्या खुद के परपेंडिकुलर होती है, तो ये नहीं होता, रिफ्लेक्सिव नहीं होता. लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यस इट इज, सो इट इज रिफ्लेक्सिव. एक लाइन जो L2 के पैरेलल है, तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी? हाँ होगी. L1 अगर पैरेलल है L2 के और L2 अगर पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 और L3 पैरेलल होंगे? yes, two lines parallel to the same side are parallel to each other, so yes it is equivalence relationship, right. अब उसने बोला है find the set of all lines related to y is equal to 2x plus 4. तो मतलब पैरेलल लाइंस ढूंढनी है. तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्लोप सेम रहना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग, any value k where k is a belong to real number, right. क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और पैरेलल लाइन का जो स्लोप है वो सेम होना चाहिए. तभी आपको ये और ये सेम रखना पड़ेगा, और आप 4 की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो. k कैन बी एनी रियल नंबर. ओके, ऑल राइट. लेट्स टॉक अबाउट द 15th क्वेश्चन. आपको एक रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, चेक करिए कि वो पहले तो देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं. 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है. आगे चेक करते हैं सिमेट्रिक. 1 2 है, तो क्या 2 1 है? नहीं, मुझे 2 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है. ट्रांजिटिव चेक करते हैं. इज द रिलेशनशिप ट्रांजिटिव? लेट्स चेक. 1 2 है, 2 2 है, तो क्या 1 2 है? सॉरी, 1 2 है, 2 के साथ कुछ और है? नहीं, और कुछ देखते हैं. 1 3 है, 3 2 है, क्या 1 2 है? यस है. सो यस, इट इज ट्रांजिटिव इन नेचर. सो इट इज रिफ्लेक्सिव and transitive, but it is not symmetric. So obviously what is the correct option? Correct option is B, right. Let's talk about the 16th question. R is a relation between A and B such that A is equal to B minus 2 and B is greater than 6. और कहाँ सेट है? नेचुरल नंबर्स पे सेट है. तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स पे सेट है, तो चेक कर लीजिए. अगर B 4 है, तो A जो है 4 माइनस 2, यानी कि A जो है वो 2 है. अगर B 8 है, बट उसने तो बोला है कि जो B है वो ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा. अगर B 8 है, ये तो B तो चलो ठीक हो गया, इट इज़ ग्रेटर दैन 6. तो क्या 8 माइनस 2 A की वैल्यू आनी चाहिए थी, राइट. सो ये भी इनकरेक्ट है. यहाँ पे चेक करते हैं. B जो है वो 8 है, तो A जो है, हाँ 8 माइनस 2, यानी कि C पार्ट करेक्ट है. ये भी चेक कर लेते हैं. B तो 7 है ही, ग्रेटर दैन 6, तो A जो है वो 7 माइनस 2, यानी कि कितना आना चाहिए था? 5, जो कि नहीं है. सो यस, C इज द करेक्ट आंसर, राइट चिल्ड्रन. If you still have any doubt in these questions of equivalence